concept water dispenser. To make a water dispenser, we need a cardboard, a plastic bottle, and a plastic pipe. So I am going to show you how we can use it. Firstly, we can take a glass and put it below the pipe, and then we can open the cap of the bottle. So we can see the water is coming out, and when we close the cap of the bottle, the water is not coming out from the pipe. So the basic science behind this is when we open the cap of the bottle, the air enters into the bottle and it gives a pressure to the water. So it comes from pipe, and when we close the cap of the bottle, the air doesn't enter into the bottle and it doesn't give pressure to the water. So it doesn't. We can see the water is not coming out from the pipe. You can pour cold drinks, juice, milk, water inside. You can take it where you want because this is very small and this is very useful. Many people doesn't know how we can pour cold drinks, juice, milk inside the glass and it is spilled down by accidentally. So this is very useful for them and for everyone. Very good. This is project about global warming in Hindi, वैश्विक तापमान वृद्धि. Now I am going to tell you about global warming. Firstly, as you can see, there is deforestation and different types of factories from where different types of harmful gases are outing. And then we make solution also. How can we exit from global warming? There is plant more and more trees. So now I am going to telling you global warming. So the carbon particles produce a blanket effect as they absorb a lot of heat given out by the earth. It is the current rise in the temperature of the air and the ocean. It is the mainly because human burns fossil fuel, cutted down the trees and burn also coal. So average temperature today about minimum 1 degree Celsius to 1.8 degree Fahrenheit. After 50 years the temperature will be minimum 2 degree Celsius to 3.6 degree Fahrenheit. Now I'm going to telling you climate change and about some information global warming. So who study the global warming is known as climatology, and Joseph Firoz is first who explained the climate change, and the James Hansen founder of global warming. Now I am going to tell you in Hindi. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये देखिए हमने यहाँ पे पेड़ काटे हुए हैं, विच में हमने दिखा रखा है कि यहाँ पे पेड़ कटे हुए हैं, यहाँ पे जीव मरे हुए हैं और यहाँ पे से फैक्ट्री से कैसे धुएं निकल रहे हैं. और यहाँ पे देखिए हमने सॉल्यूशन बना रखा है कि हम ग्लोबल वार्मिंग से कैसे निकलते हैं. हमने यहाँ पे बहुत सारे पेड़ उगा रखे हैं. तो यहाँ पे अब मैं आपको एक मेन रीजन जो है ग्लोबल वार्मिंग का वो बताने जा रही हूँ. तो ये जो पृथ्वी है वो अपने सरफेस पे झुकी है, यानी कि अपने आप पे झुकी है, ये आप सभी जानते हैं. और ये जो सूर्य की रेज जब इस वाले भाग में पड़ेगी तो सभी जानते हैं कि इस वाले भाग में भी दिन हो जाएगी और इस वाले भाग में भी रात हो जाएगी. तो फिर जब पृथ्वी घूमेगी अपने अक्ष से, जब पृथ्वी घूमेगी तो फिर जिस वाले भाग में अभी रात हुई थी उस वाले भाग में भी दिन हो जाएगी, और जिस वाले भाग में रात हुई थी और उसमें हो जाएगी अभी दिन. ये तो डेली का है, आप जानते हो. तो फिर उसके बाद जिस भाग में अभी रात हुई है, जहाँ पहले दिन थी, तो वहाँ गर्माहट बच जाती है, यानी कि हीट वहाँ रह जाती है. तो फिर जब आप जिसके जानते हो पानी से वो प्रेशर निकलता है, धूल कण जो होते हैं जो रेडिएशन के फॉर्म में, यानी कि जो रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी को फिर वो ऊपर को लेके जाते हैं. तो फिर जिस वजह से क्या होता है, ये हमारे जो अर्थ में है टेम्परेचर 15 to 20 डिग्री मेंटेन रहता है. बट अब इसका एक्सटेंडेड वर्जन विच मीन्स ग्लोबल वार्मिंग आ गया है, जिस वजह से हो क्या रहा है. पहले तो वही प्रोसेस चलती है कि सन की रेस पड़ी, पृथ्वी घूमी, और फिर उसके बाद जब रेडिएशन ऊपर जा रही होती है ना एनर्जी के फॉर्म में, तो तब क्या होता है, हमने देखो यहाँ पे पेड़ का पौधे काट रखे हैं और हमने यहाँ पे कितने सारे फैक्ट्रीज़ हैं, उन फैक्ट्रीज़ हैं उनमें से अलग अलग प्रकार की हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं. तो इन वजह से क्या होता है, यानी कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो मेन होती है, ग्रीन हाउस गैस जो होती है उसकी जो मेन जो गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड. तो वो ब्लैक कार्बन जो होता है अर्थ के बाहर यानी कि आपने ऐसे बड़ी सी लेयर बना देती है. तो फिर जो लेयर क्या करती है, जो लेयर हमारे जब रेडिएशन के फॉर्म में जो एनर्जी ऊपर जा रही होती है ना, तो फिर वो लेयर उसको वहीं पर रोक देती है, यानी कि ऊपर जाने ही नहीं देती है. तो अब होता क्या है, ये जो जब देखो जब ऊपर तो जाती है वो एनर्जी बट बहुत कम मात्रा
मात्रा में ऊपर जाती है एंड ज़्यादा मात्रा में हमारे अर्थ में ही वो रह जाती है। तो फिर जिस वजह से क्या होता है, हीट बढ़ जाती है, हमारे जो ग्लेशियर होते हैं वो बहुत तीव्र गति से यानी कि बहुत जल्दी जल्दी मेल्ट होने लगते हैं, जिस वजह से क्या होता है पानी का बढ़ाव बहुत ज़्यादा हो जाता है और जिस वजह से जो आइलैंड हो जाते हैं वो वैसे ही डूबने लग जाते हैं। एंड यहाँ पे देखिए हमने डिफॉरेस्टेशन करा है, ठीक है, इनसे जीव जंतु भी मर रहे हैं। क्या खाएंगे, अगर कुछ पेड़ ही नहीं बचे तो क्या खाएंगे क्या, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है जिससे ऑक्सीजन कम हो रही है। अगर आपको पता है कि पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं जैसे हम लेते हैं, लेकिन अब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा दुनिया में, जिस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ेगी ही। और हमने या इसका जो सॉल्यूशन, मेन सॉल्यूशन है कि हमें ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, पॉल्यूशन कम करना चाहिए। और जिस वजह से आजकल सब लोग अपनी अपनी कारें लेके घूम रहे हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं, खूब पॉल्यूशन वैसे ही बढ़ता जा रहा है। तो फिर हमें इससे बचने के लिए पब्लिक व्हीकल्स चूज़ करने चाहिए। मतलब जितना खर्चा हम अपनी कार लेने में कर रहे हैं उतना हम, अगर हमें ऑफिस जाना है तो डेली में अगर हम पब्लिक व्हीकल से जाएंगे, इससे जो व्हीकल्स होंगे वो कम होंगे, और कम व्हीकल्स होंगे तो फिर पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं होगा। इस वजह से ये भी ग्लोबल वार्मिंग का सॉल्यूशन है कि हमें कभी भी मतलब पॉल्यूशन को बढ़ने नहीं देना है। हमें फॉसिल फ्यूल ऐसे बढ़ने नहीं करने हैं हमेशा। मान लो हमें कहीं खाली जगह मिल गई, बस जला दो सारा चीज़, तो हमें वैसे नहीं करना है। अगर आपके घर में मान लो सपोज फॉर एग्जांपल एक प्लास्टिक बोतल है, वो आपकी कोई काम की नहीं है, तो प्लीज़ उसको रिसाइकल करो। उसको ये नहीं कि जला दो खाली, उसको रिसाइकल करोगे तो वो आपके भी काम आएगा एंड जिससे हमारे इन्वायरमेंट को हार्म भी नहीं होगा, उसको बर्न भी नहीं करोगे। तो यही हमारा एम है आपको समझाना कि ग्लोबल वार्मिंग से हम कैसे बचे, और हमें मतलब हमेशा पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं करना है। यही है हमें, हमारा एम है यही कि आपको समझाना कि हमें ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचना है। My name is Nisha Rawat. And we made this project named water pollution. Water pollution is a very common problem across the world, nature, environment. And this factory using raw material that travel into the river get dirty. And here are many colonies, people throwing the garbage, washing their clothes, throwing the dust in water. The water get polluted. You can see a cow also drinking water and bathing here. Here are two campaigns named by do not throw garbage in river and do not wash their clothes in river. And here are many, we can reduce of the water pollution is we grown many trees around the factories, industries. They absorb the smokes of the factories. We made this project because near our house, town, cities, garbage thrown around us, and people washing near the river, washing their clothes in near the river. Good morning, ma'am. This is my project based on rainwater harvesting. Firstly, we store water in the tank. Then the water goes to the fields and we irrigate the fields. Then we store water in the roof of the house. Then the water collected in the tank. Then the water, the use of water is to washing clothes, for drinking of animals. And rainwater harvesting is very ancient method. Now Neha will tell. गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ नेहा कार्की। ये हमारा प्रोजेक्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मीन्स बारिश का पानी कैसे इकट्ठा किया जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने एक टैंक लगाया है और एक पाइप की सहायता से अपने क्रॉप्स तक पहुँचाया है, जिससे कि हमारी फसल बहुत अच्छी उग जाती है। और जैसे कि आप देख रहे हैं हमने छत से पाइप जॉइंट किया है, जिससे हम घर के कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कपड़े धोना, बर्तन धोना और नहाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हमने ये पेड़ पौधे इसलिए लगाए हैं क्योंकि हम इनसे ऑक्सीजन ले सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे अर्थ में 70% पानी है, लेकिन उसमें से प्योर पानी सिर्फ 3% है। थैंक यू सर। नाउ गुंजन विल टेल। Sir, my name is Kunjan Upadhyay. This is my project based on rainwater harvesting. Firstly, rainwater stored in tank, joint pipe, field irrigation. Rainwater harvesting is a very simple method that can be practiced by anyone. Rainwater harvesting is the one commonly used method to save water. It refers to storing of rainwater for various uses like bathing, washing clothes, utilize washing, drinking animal. Thank you. Good afternoon, ma'am. My name is Shreya Mehra. We make a projector by using old mobile phone. We use a LED bulb and display of mobile and lens. There are two lenses and battery of phone.
and speaker of the phone. Okay. Firstly we use a LED bulb, then join the display of the mobile, and then join a lens, battery, and speaker, and made a project. Okay, very good. The projector is made by Yes. Thomas Adams in 25 September 1895. जो प्रोजेक्टर है इसका यूज जो होता है ऑफिस में, वो भी बिजनेस मीटिंग होगी उसमें, कॉन्फ्रेंस में, और भी बहुत सारी जगहों पे प्रोजेक्टर का यूज होता है। अगर स्कूल में कभी भी हमें टीचर पढ़ा सकते हैं प्रोजेक्टर से। टीचर जो ब्लैक बोर्ड होता है उससे एक स्टेप और आगे बढ़कर हमें प्रोजेक्टर से सिखाए, और बच्चों का मन भी लगेगा और टीचर सिखा पाएगी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और कैसे चल रहा है। और अगर हम ये प्रोजेक्टर को मार्केट में ले जाए तो ये बहुत सस्ता होगा, हल्का भी होगा, और अपने साथ ही कहीं भी ले जा सकते हैं। और जो प्रोजेक्टर होते हैं इसकी लेंथ सब कुछ वो नापनी पड़ती है, तो इसलिए सीधे हो जाते हैं हिलाकर। Very good. Nice. हम आपको एक डेमो देना चाहते हैं। जी. Slide. Right. Oh wow, very good. Nice. One slide is there.